Good morning to all of you. In last class, we are discussing about the adrenergic system of drugs, or we can say sympathomimetic system of drugs. So पिछली क्लास में हमने एक बेसिक जो है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आइसोप्रेनलिन जो कैटाकोलामीन्स हैं, इनके बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म और उनके जो रिसेप्टर हैं रिगार्डिंग रिसेप्टर जो हैं एड्रेनो रिसेप्टर अल्फा बीटा एंड उनके सब टाइप्स, उनकी लोकेशंस कहाँ जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये सब चीजें हमने देखी थी लास्ट क्लास में. इन टुडेज क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द adrenergic system or the drugs related to the adrenergic system. So once again I am come to the slide over here which is showing the location of the different receptors. Like alpha 1 receptors is present on the smooth muscles, GI system of the smooth muscles, sweat glands, eyes, and the alpha 2 receptor is present on the postganglionic neuron. Beta 1 receptor is present on the heart, juxtagranular cells, and kidney. Beta 2 receptors are present on the bronchi, blood vessels, uterus, liver, GI tract, urinary tract, and eye. Beta 3 receptors is especially present on the adipose tissues. So this is the basic location of the receptors. Now we are coming to the pharmacological effect of the adrenergic system. So first and most important system of our body is cardiovascular system. So adrenaline has a very profound effect on the cardiovascular system. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर एड्रेनलिन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, असर होता है, बिकॉज the beta 2 receptor, sorry, the beta 1 receptor is specially present on the heart, the walls of the heart, and it will show the major effect on the muscles of the respiratory tract like bronchi on the blood vessels, uterus, urinary tract and adipose tissues. आपको जो एड्रेनलिन का बेसिक इफेक्ट है, ज्यादातर जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा एड्रेनलिन का, वो हार्ट की मसल्स पे, ब्रोंकाई मसल्स पे, ब्लड वेसल्स पे, यूट्रस पे, यूरिनरी ट्रैक्ट में, आई एंड द एडिपोज टिश्यूज, जहां जहां स्पेशली बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे एड्रेनलिन का इफेक्ट आपको देखने मिलेगा. सो once again we are come with the CVS cardiovascular system. So the adrenaline which has the efficacy to bind with the alpha receptor primarily. जो एड्रेनलिन है वो अल्फा रिसेप्टर जहां जहां प्रेजेंट होगा वहां पे पहले बाइंड होगा, ठीक है. सो एड्रेनलिन हैज द एफिनिटी like showing here that the epinephrine or adrenaline having the agonist, more potency agonist on the alpha receptor, and beta receptor it will the second priority agent which is bind to the beta receptor epinephrine. So the adrenaline with alpha 1 and alpha 2 receptor, it will produce the constriction of arterioles and veins. अल्फा और अल्फा 2 रिसेप्टर पे जैसे एड्रेनलिन बाइंड होगा तो आर्टरीज और वेन जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उनके जो ल्यूमेन का साइज है वो डिक्रीज होगा और जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. सो जो यहाँ पे एड्रेनलिन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का जो इफेक्ट है वो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर पे एड्रेनलिन के बाइंड होने से हो रहा है. नेक्स्ट वन इज दी adrenaline given with the slow IV infusion or subcutaneous injection causes rise in systolic but fall in the diastolic blood pressure. A rapid intravascular injection of adrenaline produces a marked increase in the both systolic and diastolic blood pressure. These all effect due to the binding of adrenaline on the alpha 1 and alpha 2 receptor, and the alpha 1 and alpha 2, especially alpha 1 receptor is present here in the smooth muscles and GI tract and postganglionic neuron. So increase in heart rate, arrhythmia,
with high doses. Adrenaline produces the increase in heart rate, यानी कि positive chronotropic, positive inotropic effect, arrhythmia with high doses. High doses of adrenaline produce the arrhythmia. Arrhythmia means the जो contraction का rhythm है heart का वो disturb हो जाता है. That is called arrhythmia. When blood pressure rises markedly, reflex bradycardia occurs due to the stimulation of vagus nerve. जैसे ही ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ने लगता है पेशेंट का, अगर एड्रेनालिन का हाई डोज हो गया है, सो जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा तो बॉडी खुद ही ऑटोमेटिकली हार्ट रेट को कम करने की कोशिश करेगी. बॉडी का जो एक सेल्फ जो सिस्टम है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का वो एक्टिवेट हो जाएगा. ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स. जो ड्रग की वजह से जो इफेक्ट शो हो रहा है उसके अगेंस्ट में बॉडी एक्शन करना शुरू करती है. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया. ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का कम होना. ओके, सो जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा एड्रेनालिन की ओवरडोज की वजह से तो बॉडी खुद रेस्पॉन्ड करेगी और रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया यहाँ पे आपको दिखेगा. ओके, दिस इज द यूजुअल रेस्पॉन्स सीन व्हेन नॉरएड्रेनालिन इज इंजेक्टेड आईवी. इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. जब हार्ट रेट बढ़ता है, एड्रेनालिन जब एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो हार्ट रेट के बढ़ने के साथ कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होता है. नाउ द आइसोप्रेनालिन. आइसोप्रेनालिन इज आल्सो अ कैटेकोलामीन. आइसोप्रेनालिन binds with the beta 1 and beta 2 receptor. आइसोप्रेनालिन का जो एफिकेसी है, जो बाइंडिंग पोटेंसी है, यहाँ देखेंगे आप, एड्रेनालिन का जो बाइंडिंग पोटेंसी है आइसोप्रेनालिन का जो बाइंडिंग पोटेंसी है वो यहाँ पे ज्यादा है. आइसोप्रेनालिन का बीटा 1 और बीटा 2 पे जो बाइंडिंग पोटेंसी है वो ज्यादा है. प्रायोरिटी से आइसोप्रेनालिन जब रिलीज होगा तो प्रायोरिटी से बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड होगा. तो यहाँ ब्रैकेट में भी मैंने आपको यहाँ शो कर रखा है कि जो एड्रेनालिन है उसका बाइंडिंग जो है प्रायोरिटी पे होगा अल्फा 1 और अल्फा 2 पे, और जो आइसोप्रेनालिन है उसका जो बाइंडिंग है वो प्रायोरिटी पे होगा बीटा 1 बीटा 2 पे. उसके बाद एड्रेनालिन का होगा, फिर नॉर एड्रेनालिन का होगा. सो इस तरीके से इनका बाइंडिंग होता है. आइसोप्रेनालिन जब भी रिलीज होता है तो बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर से पहले बाइंड होगा. और क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगा? डायलेटेशन ऑफ आर्टेरियोल्स एंड वेन्स. जस्ट अपोजिट एक्शन ऑफ द एड्रेनालिन और अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर. यहाँ जो अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर पे एड्रेनालिन ने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया था उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस होगा आफ्टर बाइंडिंग द बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर विद द आइसोप्रेनालिन. तो यहाँ पे डायलेटेशन ऑफ आर्टेरियोल एंड वेन, फॉल इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू द बीटा रिसेप्टर, कार्डियक स्टिमुलेशंस एंड इंक्रीज rate of heart and force of contraction. And also increase the cardiac output. Then the noradrenaline causes rise in systolic, diastolic and mean blood pressure. Noradrenaline का binding जो है सब पे एक जैसा होता है. अल्फा और बीटा रिसेप्टर सब पे एक जैसा मीडियम बाइंडिंग होता है नॉरएड्रेनालिन का. एंड इट विल प्रोड्यूस सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg अबव बिलो द 80 mmHg होता है, उसमें दोनों में इंक्रीज होता है. और फाइनली जो मीन बीपी है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, वो इंक्रीज होने लगता है. इट डज नॉट कॉज द वेसोडाइलेशन, नो बीटा 2 एक्शन, बिकॉज ऑफ यहाँ पे बीटा 2 पे बाइंडिंग नहीं होती है नॉरएड्रेनालिन की, इसलिए यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स के डायमीटर में चेंजेस नहीं होते हैं. पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली ड्यू टू द अल्फा एक्शन. यहाँ पे नॉरएड्रेनालिन का कुछ प्रोपोर्शन जब अल्फा से बाइंड होता है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है. पेरिफेरल मींस कि बॉडी के सराउंडिंग एरिया में जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होने से ब्लड के मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत आती है. दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस. Now the action of the adrenaline or the catecholamines on the blood vessels, it will cause the vasoconstriction in skin. जो स्किन है वहां पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा. स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा. म्यूकस मेम्ब्रेन एंड रेनल ब्लड वेसल्स, कहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा? स्किन की ब्लड वेसल्स में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, और रेनल ब्लड वेसल जो होंगी वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर ऑन द रिसेप्टर ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर. जैसे ही कैटेकोलामीन और एड्रेनालिन
अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जैसा अभी हमने आगे की स्लाइड में यहाँ देखा है कि आफ्टर बाइंडिंग ऑन द अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर एड्रेनालिन कॉज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल एंड वेन्स। एज इट इज यहाँ पे ब्लड वेसल्स के लिए दोबारा से लिखा है, जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन है स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन और रीनल ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और जहां पे बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट है, बीटा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, ब्रोंकाई ब्रोंकाई की जो स्मूथ मसल्स होती है उनमें, ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल, यूट्रस, इनमें जो है वेसोडाइलेशन होगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ द बीटा रिसेप्टर। वेसोडाइलेशन इन द स्केलेटल मसल्स, लीवर एंड कोरोनरी आर्टरीज विद बीटा रिसेप्टर। तो दोनों तरह के एक्शन देखने को मिलेंगे। अगर एड्रेनालिन अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होता है तो वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, और एड्रेनालिन और कैटेकोलामीन जो है बीटा रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो वो वेसोडाइलेशन प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑन द ब्रोंकियल मसल्स, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ब्रोंकियल मसल्स हैं उनके ऊपर एड्रेनालिन या आइसोप्रेनालिन एक्ट ऑन द बीटा 2 रिसेप्टर एंड कॉज द ब्रोंकोडाइलेशन। बीटा 2 रिसेप्टर वहां पे प्रेजेंट होता है ब्रोंकियल मसल्स में, तो वहां पे एड्रेनालिन और आइसोप्रेनालिन जैसे ही बाइंड होंगे तो वहां पे ब्रोंकोडाइलेशन होगा। ओके, वहां पे अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है तो अल्फा रिसेप्टर का कोई एक्शन नहीं आएगा। स्पेसिफिकली बीटा 2 रिसेप्टर ब्रोंकियल मसल्स में प्रेजेंट होता है तो वहां पे ब्रोंकोडाइलेशन क्रिएट करेगा। ओके, द सेकंड वन इज आई। जो हमारा आई है उसकी जो मसल्स हैं, आइरिस की जो मसल्स हैं उन पे क्या इफेक्ट है, एड्रेनालिन बाइंड्स विद द अल्फा 2 रिसेप्टर कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द रेडियल मसल्स। हमने देखा अभी जो आई है, यहाँ देखिए आप, आई आईज में अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आईज की जो सेल्स हैं उनमें अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड होके वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द रेडियल मसल्स। जो रेडियल मसल्स हैं, एक होती है सर्कुलर मसल्स, एक होती है रेडियल मसल्स। तो रेडियल मसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होने से माइड्रेसिस होगा, माइड्रेसिस होगा। तो एड्रेनालिन के का जो है, एड्रेनालिन का जो है आई पे क्या इफेक्ट आएगा, माइड्रेसिस क्रिएट होगा। नेक्स्ट वन इज द जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उस पे एड्रेनालिन की क्या इफेक्ट आएगा, एड्रेनालिन कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ गट वाया द एक्टिवेटिंग अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। एड्रेनालिन जो है अल्फा और बीटा रिसेप्टर से बाइंड होके जीआई ट्रैक्ट के मूवमेंट को रिलैक्स करेगा, तो रिलैक्सेशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट इज द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर की डेट्रेसर मसल्स हैं, सो द डेट्रेसर मसल्स आर रिलैक्स्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ द बीटा 2 रिसेप्टर। वहां पे बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है डेट्रेसर मसल में यूरिनरी ब्लैडर की, तो उनमें उनके अंदर रिलैक्सेशन होगा। रिलैक्सेशन होने से क्या होगा कि जो एक यूरिनेशन का, यूरिनेट करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा रिड्यूस होगा, एंड ट्राइगोन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। ट्राइगोन जो स्पिंक्चर है वो अल्फा 1 रिसेप्टर के वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो जब डेट्रेसर मसल रिलैक्स होंगी, ट्राइगोन जो स्पिंक्चर है वो रिलैक्स होंगे, तो वहां पे डिले होगा मिक्चुरेशन, या जो यूरिनेशन है उसके अंदर डिले होगा। एकदम से आपको यूरिनेशन नहीं आएगा पेशेंट को, तो ये ड्रग का यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर इफेक्ट है। हमने देखा था एसिटाइल कोलिन की वजह से यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली होने लगता है, और उसका जस्ट अपोजिट एड्रेनालिन अगर पेशेंट को देंगे, एड्रेनालिन आइसोप्रेनालिन ऐसी ड्रग अगर देंगे, इस कैटेगरी की ड्रग देंगे, तो वो डिले करेगा, मिक्चुरेशन को डिले करेगा। नेक्स्ट वन इज द यूट्रस। यूट्रस मींस द गर्भाशय जिसको हम कहते हैं। तो यूट्रस पे क्या इफेक्ट आएगा, एड्रेनालिन कॉज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द अल्फा रिसेप्टर विद अल्फा रिसेप्टर एंड रिलैक्स द यूट्राइन मसल विद द बीटा रिसेप्टर। दोनों एक्शन प्रोड्यूस होंगे। जब अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होगा तो रिलैक्सेशन होगा यूट्राइन मसल से, और बीटा रिसेप्टर पे जब बाइंड होगा, जब अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, बीटा रिसेप्टर से जब भी बाइंड होगा तो रिलैक्सेशन होगा। एंड इट कॉज द रिलैक्सेशन एट द टर्म ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी या लेबर पेन होता है उस कंडीशन के अंदर आप एड्रेनालिन देंगे तो वहां पे ऐसी कंडीशन में बीटा रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं और उनसे एड्रेनालिन बाइंड होके यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स कर देता है। सो द रिलैक्सेशन ऑफ द uterine muscles or uterus during the pregnancy. Now the effect on the central nervous system CNS. Adrenaline does not cross the blood-brain barrier. Blood-brain barrier, ये आपको BBB जो लिखा हुआ दिख रहा, it is a blood-brain barrier। एक blood vessels और ब्रेन को क्रॉस करने के बीच में एक बैरियर बना होता है जिसको हर कोई एलिमेंट जो है क्रॉस नहीं कर सकता है। जो परमिटेड एलिमेंट है, लिपोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं, वही क्रॉस कर सकते हैं। So adrenaline does not cross the blood-brain barrier, so not produced any marked action on the CNS.
नेक्स्ट वन, द इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं और जो लीवर है उनके फंक्शनिंग पे क्या चेंजेस आते हैं एड्रेनालिन की वजह से। सो एड्रेनालिन कॉजेज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन होता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सो इट विल प्रोवोक द ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड प्रोड्यूस द हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो जब स्टोर होता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जब भी स्टिमुलेशंस आते हैं, ब्रेन जब भी बोलता है, तो वो ग्लाइकोजन जो है लीवर में जो स्टोर है वो ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो वो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरलैक्टिडीमिया ड्यू टू द एक्शन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर। लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस यानी कि हमारे जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं स्किन के नीचे, स्किन के जस्ट नीचे जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं जहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट होते हैं आके, कोलेस्ट्रॉल जो है आके डिपॉजिट होता है, तो वहां पे उन टिश्यूज के अंदर लिपोलाइसिस होगा, यानी कि ब्रेकडाउन होगा, वहां से वो टिश्यूज जो है एक्स्ट्रा फैट जो है वो हटेगी वहां से। सो दैट इज कॉल्ड लिपोलाइसिस। सो अराइज इन द प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स एंड कैलोरीजेनेसिस। तो जो लिपिड है वो लिपिड वहां पे डिपॉजिट हुआ है स्किन पे, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा। मोटापे में क्या होता है, एडिपोज टिश्यूज में जो है फैट मॉलिक्यूल का डिपोजिशन ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ज्यादा होने लगता है। सो ऐसी एड्रेनालिन जैसी ड्रग्स को यूज करने से लिपोलाइसिस होता है, मोटापा कम होता है, ओबेसिटी रिड्यूस होती है, और वो जो फैट है वहां से हट हट के वो वहां से निकल के रिलीज होके वो ब्लड में पहुंचता है, तो ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर फैटी एसिड्स का लेवल बढ़ जाता है। These are due to the direct action on the liver, muscles and adipose tissue. जहां जहां भी लिपिड मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं, ऐसे सभी टिश्यूज पे एड्रेनालिन इफेक्ट देता है और ब्रेक डाउन करता है ऐसे मॉलिक्यूल्स। इन एडिशन, मेटाबॉलिक इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ द ग्लूकागोन सिक्रेशन। सो यहाँ पे ग्लूकागोन का सिक्रेशन बढ़ने लगता है, इंसुलिन का सिक्रेशन कम होने लगता है। स्केलेटल मसल्स पे ड्यू टू द एक्शन ऑन द अल्फा इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। स्केलेटल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं बिकॉज जो अल्फा रिसेप्टर है वो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एड्रेनर्जिक ड्रग्स, सिम्पथोमिमेटिक ड्रग्स। ये क्लासिफिकेशन आपने पहले पढ़ा भी होगा, याद भी किया होगा, तो आपको एज इट इज इसी केडीटी वाले फॉर्मेट में आपको याद रखना है। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। सो फर्स्ट वन इज दी adrenergic drugs are classified into the subcategories like pressure agent, bronchodilators, CNS stimulant, uterine relaxants, cardiac stimulants, nasal decongestant and anorextics. So the pressure agents मीन्स ये इस कैटेगरी की सबसे मेन ड्रग होती हैं और बेसिकली हार्ट पे काम करती है, कार्डियक मसल्स पे काम करने वाली ड्रग्स होती हैं। सो नॉर एड्रेनालिन, एफिड्रीन, डोपामीन, फेनेलेफ्रीन, मेरोक्सामीन, मेफेंट्रामीन, इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो है एड्रेनर्जिक ड्रग्स का काम करेंगी। नेक्स्ट वन इज द ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स। जो ब्रोंकियल मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्रोंकियल मसल्स हैं उनको उनके ऊपर काम करके उनको रिलैक्स करती हैं। जैसा हमने देखा अभी कि ब्रोंकाई जो है उन पे क्या इफेक्ट आ रहा है एड्रेनालिन का, इट इज रिलैक्सिंग दी ब्रोंकियल मसल्स। सो यहाँ पे ब्रोंको डायलेटर्स जो है ड्रग वो यहाँ पे यूज करते हैं अलग अलग डिजीजेस में, जो हम आगे देखेंगे। आइसोप्रेनलिन, साल्बुटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्मेटोरॉल, फाल्मेटोरॉल, बानबिटोरॉल, इस तरह की ड्रग है मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, जिनमें साल्बुटामोल है, टर्ब्यूटालिन है, फाल्मेटोरॉल है, बानबिटोरॉल है। ऐसे ड्रग्स मार्केट में इजीली आपको दिख जाएंगे कहीं। नेक्स्ट वन इज द सीएनएस स्टिमुलेंट। इसमें सीएनएस स्टिमुलेंट जो ड्रग हैं वो कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें काम आती है। एम्फेटामिन, डेक्साम्फेटामिन, जो एम्फेटामिन के जो आगे मेटाबोलाइट्स हैं। नेक्स्ट वन इज द यूटेराइन रिलैक्सेंट, रिटोड्रिन, आइसोक्सुप्रीन, साल्बुटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। प्राइमरीली एज अ यूटेराइन रिलैक्सेंट रिटोड्रिन और आइसोक्सुप्रीन जो है यूज की जाती है। ये दोनों ड्रग भी बहुत कॉमन ड्रग है, मार्केट में अवेलेबल होती हैं। एंड द कार्डियक स्टिमुलेंट स्पेशली ऑन कार्डियक मसल्स टिश्यूज पे एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन, डोबुटामाइन जो है अपना इफेक्ट शो करती हैं। दी मेजर कैटेगरी द नजल डीकंजेस्टेंट। नजल डीकंजेस्टेंट मतलब कि जब हमारा नाक बंद हो जाता है ड्यूरिंग द कोल्ड, सर्दी में जब हमारा नाक बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, उसको कहते हैं नजल कंजेशन। इट इज कॉल्ड नजल कंजेशन क्योंकि जो अंदर की म्यूकोसल लाइनिंग है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और
म्यूकोसल थिकनेस बढ़ जाती है, और ऐसी कंडीशन में जो ड्रग हमको दी जाती है ये भी हम नॉर्मली मार्केट में देखते हैं। इसमें हम ज़ाइलोमेथाजोलिन, नेफाजोलिन, फेनालेफ्रिन, ये ड्रग जो है नॉर्मली यूज करते हैं। नाउ द एनोरेक्टिक, एनोरेक्टिक मींस जो भूख को बढ़ाती है, सॉरी जो भूख को कम करती है। एनोरेक्टिक ड्रग जो है हेपेटाइट से रिलेटेड ड्रग है। एम्फेटामिन, इसी सीएनएस स्टिमुलेंट वाली कैटेगरी की ड्रग है। एम्फेटामिन, फेनफ्लुरामीन, डेक्स, फेनफ्लुरामीन एंड सिबुट्रामीन। सिबुट्रामीन जो ड्रग है एंटी ओबेसिटी ड्रग है, ये भूख को कम करने के लिए यूज की जाती है। वन बाय वन हम एक दो चार ड्रग जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट वन इज द डोपामीन। इट इज द डोपामिनर्जिक D1 D2 रिसेप्टर। जो डोपामीन है वो एक कैटेकोलामीन है जो कि एड्रेनलिन का जो बायोसिंथेसिस होता है उसका एक मिडिल प्रोडक्ट होता है, और हमारे ब्रेन में एसिटाइलकोलिन के साथ मिलके एक मूड का जो लेवल है, बिहेवियरल जो मूड होता है पेशेंट का या किसी व्यक्ति का, उसको मेंटेन करने के लिए इसका काम होता है। सो ये किससे बाइंड होता है? डोपामिनर्जिक जो डोपामीन जो है वो बाइंड होता है D1 और D2 रिसेप्टर से, और इसके अलावा बीटा अल्फा और बीटा 1 रिसेप्टर से भी बाइंड होता है। इसके भी एगोनिस्ट एक्शन शो करता है। It raises the cardiac output and systolic blood pressure with a little effect on the diastolic blood pressure. इसके यूजेस क्या क्या हैं? कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक के अंदर, कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक, जब कार्डियोवास्कुलर शॉक हो जाता है पेशेंट को, यानी कि ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड शॉक। सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट जब फेल हो जाता है, हार्ट फेलियर अलग अलग कंडीशंस के दौरान, उस कंडीशन में डोपामीन को यूज कर सकते हैं। wherein it increases the blood pressure and urine outflow, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके यूरिन आउटफ्लो भी बढ़ाता है। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द IV infusion 0.2 to 1 milligram per minute under the monitoring. Next drug is the ephedrine. Ephedrine is obtained from the natural sources called as ephedra. Ephedra giardiana. It is obtained from the natural source. Ephedra is, it is an alkaloid obtained from the Ephedra vulgaris. ये उसका Ephedra giardiana का ही एक सब टाइप है। पोटेंट अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये बहुत ही पोटेंट ड्रग है, अल्फा और बीटा रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है, और जैसे ही अल्फा बीटा रिसेप्टर से बाइंड होगी अपना एक्शन शो करेगी। क्या एक्शन आएंगे इसके? रिपीटेड इंजेक्शंस प्रोड्यूस द टैकीफाइलैक्सिस। इट इज रेजिस्टेंट टू दी, जो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम हमने देखा जो नॉर एड्रेनलिन का डिग्रेडेशन करता है, उसका मेटाबॉलिज्म करता है, उसको वहां से हटाने का काम करता है। सो ये जो ड्रग है एफिड्रिन, एफिड्रिन जो है मोनोअमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम से रेजिस्टेंट होता है, यानी कि ये इससे डिग्रेडेड नहीं होता है, वहां से खत्म नहीं होता है, तो लंबे समय तक एफिड्रिन अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। एंड इट इज इफेक्टिव ओरली, ओरल डोज भी इसका अवेलेबल है मार्केट में, और ओरली ये इफेक्टिव है, यानी कि जो GI ट्रैक्ट का जो pH है उस पर कंपेटेबल है, अपना काम कर सकता है, आयोनाइज नहीं होता है वहां पे। इट इज अबाउट 100 टाइम लेस पोटेंट देन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन से 100 टाइम जो है कम पोटेंट होता है। इट इज लॉन्गर एक्टिंग, लंबे समय तक एक अपना असर देता है, 4 से 6 घंटे तक। एपिटिन क्रॉसेस टू ब्लड ब्रेन बैरियर कॉज एंड स्टिमुलेशन। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है और वहां पे स्टिमुलेशन क्रिएट करता है। यूजेस इन दी ब्रोंकियल अस्थमा एंड पोस्चरल हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर जब डाउन हो जाए और ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट ड्रग इज दी फेनालेफ्रिन। So the next drug is the phenylephrine. It is a selective alpha 1 agonist. ये जो ड्रग है वो केवल अल्फा 1 एगोनिस्ट है, अल्फा 1 रिसेप्टर से ही बाइंड होती है, बीटा रिसेप्टर इसका इफेक्ट नहीं आता है। It raises the blood pressure by causing vasoconstriction because it has the little cardiac action reflex bradycardia is prominent. हमने देखा अल्फा रिसेप्टर से जो भी ड्रग बाइंड हो रही है वो क्या कर रही है? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, so it will produce the vasoconstriction. Topically it is used as a nasal decongestant. nasal decongestant जब नजल कंजेशन होता है, ऐसे पेशेंट्स को नजल डिकंजेस्टेंट के रूप में ये ड्रग दी जाती है। एंड इन द आई फॉर प्रोड्यूसिंग द माइड्रेसिस, आईज की जो मसल्स हैं वहां भी माइड्रेसिस प्रोड्यूस करने में फेनालेफ्रिन के आई ड्रॉप्स अवेलेबल है मार्केट में। व्हेन साइक्लोफेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड। इट इज आल्सो, इट इज अ सेलेक्टिव अल्फा 1 agonist as it is a dose 2 to 5 milligram intramuscular, 0 to 0.1 to 0.5 milligram slow IV injection
30 to 60 microgram per minute IV infusion and 5 to 10 milligram oral doses are available. Some odd doses जो वहाँ पे eyes और nasal installation के लिए available हैं. The next drug is the isoxasporine. It is orally effective long-acting drug. हमने देखा आइसोक्सपुरिन जो है यूटेराइन रिलैक्सेंट ड्रग है, बीटा रिसेप्टर से बाइंड होती है यूट्रस के बीटा 2 रिसेप्टर जहां पे प्रेजेंट होता है, बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड होती है. स्टिमुलेंट बीटा 2 receptor stimulant which has the direct smooth muscle relaxation property as well as it has been used as a uterine relaxant for the threatened abortion and the dysmenorrhea. Next one is the amphetamine. एम्फेटामिन यानी कि एनोरेक्टिक ड्रग्स जो है, एनोरेक्टिक और सीएनएस एक्टिंग जो ड्रग है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एम्फेटामिन कैटेगरी की ड्रग है. सो एम्फेटामिन सुप्रेस द एपेटाइट, ये भूख को कम करता है. सुप्रेस यानी कम करना, एपेटाइट यानी भूख को कम करता है. देयर यूज एज द एनोरेक्टिक एजेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय देयर एडवर्स सेंट्रल इफेक्ट. इसका जो ये एनोरेक्टिक एक्शन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक एडवर्स इफेक्ट के तौर पे इसका इफेक्ट आता है, यानी कि है इसका एडवर्स इफेक्ट, ये एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करता है सीएनएस पे, और उसी एडवर्स इफेक्ट को हम काम में लेके हम यूज कर सकते हैं. सो इट इनहिबिट द फीडिंग सेंटर बट हैव नो सीएनएस स्टिमुलेशन. ये फीडिंग सेंटर जो है ब्रेन का, जो हमको सेटिस्फेक्शन देता है, पेट भर गया है अब खाना नहीं खाना है, तो वहां पे ये एक्शन करता है और वहां पे स्टिमुलेशन किसी तरह का सीएनएस को डिस्टर्बेंस नहीं करता. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्ट बाय इनहिबिटिंग द reuptake or reverse transport of noradrenaline and dopaminergic or serotonin 5-HT, thus increasing the monoaminergic transmission in brain. They are grouped as the noradrenergic agent जो है एम्फेटामिन में, फिनाइल प्रोपेनोलामीन, डाइएथाइल प्रोपियोन. सेरोटोनर्जिक एजेंट जो है फेनफ्लुरामीन, डेक्सफेनफ्लुरामीन. नॉरएड्रेनर्जिक प्लस सेरोटोनिक एजेंट जो है सिबिट्रामीन. इट इज यूज्ड एज वेट लॉस फॉर द वेट लॉस इन द ओबेस पीपल. जो मोटे लोग होते हैं उनमें वजन कम करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए ड्रग यूज की जाती है. यहाँ पे नीचे एनोरेक्टिक ड्रग्स के बारे में दिया हुआ है. एनोरेक्टिक्स का मीनिंग क्या है? सो एनोरेक्टिक ड्रग्स आर द एपेटाइट सुप्रेसेंट मेडिकेशंस आर drug that promote the weight loss by decreasing the appetite or increasing the sensation of fulfillment. Some nasal decongestant जो ड्रग हैं इस कैटेगरी में, so these are alpha agonist. जो nasal congestant ड्रग हैं वो सारी alpha agonist हैं, alpha receptors bind होती हैं, which on topical application dilute solution. टॉपिकल एप्लीकेशंस भी इसके अवेलेबल हैं. प्रोड्यूस द लोकल वेसोकंस्ट्रिक्शन, इसका काम है अल्फा एक्शन पे, अल्फा पे एक्ट करना और वेसोकंस्ट्रिक्शन क्रिएट करना. इमेराजोलिन कंपाउंड जो है इसके अंदर नजल डिकंजेस्टेंट में नेपाजोलिन, xylometazoline और oxymetazoline are used as the imetazoline product in the nasal congestant. Selective alpha 2 agonist, they have longer duration of action. जो selective alpha 2 agonist ड्रग होती हैं वो longer duration of action है, 12 आवर्स इनका इफेक्ट है. लॉन्ग टर्म यूज में प्रोड्यूस द इंसोम्निया एंड एट्रोपिक राइनाइटिस. इसके लॉन्ग टर्म यूज पे इंसोम्निया, नींद ना आना ऐसी दिक्कत हो सकती है. ड्रग शुड यूज कॉशियसली इन द हाइपरटेंसिव पेशेंट. जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनमें थोड़ा पेशेंट का हिस्ट्री को देख के इस ऐसे ड्रग्स को यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है अल्फा पे एक्शन करके, और पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव है ऑलरेडी तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. ऑलरेडी पेशेंट जो है ब्लड प्रेशर का है, फिर ये ड्रग देने से ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो कई बार पेशेंट को दिक्कत हो सकती है. इसलिए पेशेंट का हिस्ट्री जानकर ही नजल डिकंजेस्टेंट ऐसे ड्रग्स को यूज किया जाना चाहिए. नाउ इज द थेरापेटिक यूजेस. हमने आपके लिए बहुत अच्छी स्लाइड्स क्रिएट की हैं. जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं ऐसी कैटेगरी के, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, क्या क्या उनकी पैकिंग है, उनको थोड़ा सा एक इंडिकेट करते हुए ये थेरापेटिक यूजेस हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको समझने में और याद करने में इजी रहे, थोड़ा इंटरेस्ट आपको बना रहे इसके लिए. सो जो आपका एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की प्रिपरेशन है मार्केट में आईवी फॉर्म में अवेलेबल होती हैं. सो 1 मिलीग्राम आईवी, जैसे कि एड्रेनलिन का यहाँ पे एक एम्प्यूल पड़ा हुआ है, वायल पड़ा हुआ है, इसको वायल कहते हैं, सॉरी, है ना. इट इज कॉल्ड एज वायल. एम्प्यूल क्या होता है? छोटी सी शीशी आती है ना, पतली सी, जिसके अंदर इंजेक्शन होता है, उसको फोड़ के और डॉक्टर सिरिंज भरता है, इट इज कॉल्ड एम्प्यूल. ये होता है वायल. वायल में से एक से ज्यादा डोजेस आप बाहर निकाल सकते हैं. इस वायल के ऊपर एक रबर कॉर्क लगा होता है, जो है वल्कनाइज्ड प्लास्टिक का, सल्फर से बना होता है. सल्फर इज वल्कनाइज्ड प्लास्टिक, उससे बना होता है.
और उसके अंदर नीडल डाल के और डॉक्टर जो है या फार्मासिस्ट जो है नर्सिंग स्टाफ वो यहाँ से ड्रग को विड्रॉल करते हैं और अपना इंजेक्शन जो सिरिंज है वो भर के दोबारा से इसमें 2 से 3 डोजेस बना सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड एज एम्प्यूल, सॉरी वायल. और जो आपको नॉर एड्रेनालिन का ये दिख रहा है पैकेट, इसके अंदर 5 एम्प्यूल्स हैं. एम्प्यूल जो आपको मैं बता रहा हूँ 2-2 ml के 5 एम्प्यूल इस पैकेट के अंदर है नॉर एड्रेनालिन के. ओके, सो नॉर एड्रेनालिन का यूज क्या क्या है? इट इज यूज्ड इन द हाइपोटेंसिव स्टेट. हाइपोटेंसिव मतलब जब पेशेंट का हार्ट रेट बिल्कुल कम हो जाए, हार्ट रेट एकदम से कम हो जाए, दिल धड़कना बंद कर दे, ऐसी कंडीशन में हार्ट की जो मसल्स हैं, जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, कार्डियक मसल्स हैं, उनके अंदर अगर ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है तो पेशेंट का डेथ हो जाता है. क्योंकि कार्डियक मसल्स काम नहीं करेंगी तो हार्ट जो है आपका बीटिंग करना बंद कर देगा. बीटिंग करना बंद करते ही पेशेंट का डेथ हो सकता है. क्योंकि हार्ट बीट नहीं करेगा तो ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, और ब्रेन तक जैसे ही ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा. ब्रेन डेड होते ही पेशेंट का थोड़ी देर बाद हार्ट भी डेड हो जाएगा और पेशेंट फाइनली. So in the hypotensive state, adrenaline 0.5 milligram intramuscular drug of choice in the anaphylactic shock. Adrenaline is the life-saving drug. बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ब्लड प्रेशर डाउन हुए ही जा रहा है, तो रेयरेस्ट कंडीशन जब पेशेंट बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुंचा है, ऐसी कंडीशन में एड्रेनालिन को यूज करते हैं. 0.5 मिलीग्राम IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सीधा हार्ट में लगाते हैं. हार्ट की जो कार्डियक मसल्स हैं वहां पे सीधा इंजेक्शन को लगाते हैं. सो इट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग. इट राइजेस ब्लड प्रेशर एंड काउंटरएक्ट द ब्रोंकोस्पाज्म. ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है. दूसरा जो ड्रग है डोपामीन इंक्रीजेस द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी विदाउट कॉजिंग टैकीकार्डिया, इंप्रूव रीनल ब्लड फ्लो एंड मे हेल्प टू राइज द ब्लड प्रेशर. दोनों ड्रग जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करेंगी, डोपामीन और एड्रेनालिन. ओके, अलॉन्ग विद दी लोकल एनेस्थेटिक. जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती हैं, यानी कि किसी लोकल एरिया को एनेस्थेटाइज करने के लिए, सुन्न जिसको हम कहते हैं ड्यूरिंग दी वेरी सम सर्जिकल प्रोसीजर्स, ऑपरेटिव प्रोसीजर, जब किसी बॉडी के किसी ऑर्गन को हमको सुन्न करना है, एनेस्थेटाइज करना है, ऐसी कंडीशन में उस ड्रग के साथ जो एनेस्थेटाइज करने की जो एनेस्थेटिक एजेंट है उसके साथ में अगर एड्रेनालिन दी जाए तो उस एनेस्थेटिक एजेंट का एक्शन जो है प्रोलॉन्ग हो जाएगा, लंबे समय तक एक्शन रहेगा और उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम हो जाएगी. जो एनेस्थेटिक एजेंट आप डॉक्टर आपको देगा, एनेस्थेटोलॉजिस्ट, तो उसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट होंगे वो साथ में एड्रेनालिन देने से कम हो जाएंगे और उसका जो है इफेक्ट जो लॉन्ग टर्म तक रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट रहेगा. The third use of the adrenaline or noradrenaline is the in hypoglycemia, generally IV or oral glucose preferred. जनरली जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है पेशेंट को, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब डाउन हो जाता है, तो डॉक्टर जो है आईवी इन्फ्यूजन ग्लूकोज का देते हैं, यानी कि बोतल चढ़ाते हैं, ग्लूकोज का बोतल चढ़ा देते हैं. अगर फिर भी अगर किसी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ऐसी कंडीशन में ही एड्रेनालिन को यूज करना चाहिए. तो एड्रेनालिन क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है बॉडी में उसको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल फिर से मेंटेन होगा. सो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन के इस तरह की प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल होती हैं. नेक्स्ट वन इज यहाँ पे जो कंट्रोल ऑफ लोकल ब्लीडिंग, एड्रेनालिन और फिनाइलेफ्रिन दोनों में से कोई भी एक ड्रग या दोनों ड्रग यूज करते हैं. एड्रेनालिन और फिनाइलेफ्रिन कंट्रोल द आर्टेरियोलर एंड कैपिलरी ब्लीडिंग. नॉरएड्रेनालिन 8 milligram in saline put in stomach through tube can control the bleeding of from the gastric ulcer. पेशेंट का गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, अगर स्टमक के अंदर अल्सर हो गया है, स्टमक में अगर वाउंड्स हो गए हैं, घाव हो गए हैं, उनसे अगर ब्लीडिंग हो रहा है, वो ब्लीडिंग का पता कैसे चलेगा? जो स्टूल है, जो फीकल मटेरियल है, उस फीकल मटेरियल का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा स्टूल मटेरियल का. उसकी वजह से हम पता लगाएंगे, हम अनुमान लगाएंगे यहाँ पे कि जो है इंटेस्टाइन में या स्टमक में जो अल्सर है वहां से ब्लीडिंग हो रहा है. सो ऐसी ब्लीडिंग्स को रोकने के लिए नॉरएड्रेनालिन सीधा स्टमक में आप सलाइन के साथ दे सकते हैं. वो ब्लड लॉस है, जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा. The another use of the drug of adrenaline like in the nasal decongestant. So यहाँ पे कुछ ड्रग्स हमने अभी देखी क्लासिफिकेशन में. Some drugs are used as nasal decongestant, नाक जब बंद हो जाता है. So in cold
राइनाइटिस, साइनसाइटिस। साइनसाइटिस, साइनस जो होते हैं उनके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इट इज कॉल्ड साइनसाइटिस। एंड द राइनोसाइटिस, नाक का बहना या कोल्ड सर्दी में हमारे नाक जो है अक्सर ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक नोज के अंदर जो है अल्फा एगोनिस्ट ड्रग जो है फेनालेफ्रिन इज अल्फा एगोनिस्ट, तो फेनालेफ्रिन दी जाती है, यूज्ड ओरली, ओरल रूट से भी देते हैं, बाकी के रूट्स भी अवेलेबल हैं। तो ये क्या करेगा, जो म्यूकोसा है अंदर की, जो एक्सपांड हो गई, स्वेलिंग हो गई है उसके अंदर, उसको श्रिंक कर देगा, उसको श्रिंकेज कर देगा उसका, तो जो है नजर कंजेशन में रिलीफ मिलेगा, नाक खुल जाएगा एकदम से। एज अ साइड इफेक्ट इट कैन कॉज राइज इन बीपी, लेकिन अगर फ्रिक्वेंटली इसको अगर लिया जाए तो ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, जो इसका एक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज माइड्रेटिक। माइड्रेटिक मीन्स दी जो प्यूपिल का साइज है वो बढ़ जाना, प्यूपिल का डायलेशन, दैट इज कॉल्ड माइड्रेटिस। तो फिनाइलेफ्रिन 5 to 10% डायलेट द प्यूपिल फॉर एग्जामिनेशन। डॉक्टर जब आँख आँख को हम चेक करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो प्यूपिल को डायलेट करने के लिए, अगर प्यूपिल का साइज बड़ा होगा तो अच्छे से चीजें अंदर देख जाएंगी, डॉक्टर को अंदर की जो चीजें हैं वो देख सकेगा, इसलिए एग्जामिनेशन के लिए फेनाइलेफ्रिन 5 to 10% यूज कर सकते हैं। लो डोजेस यूज्ड फॉर द कंजेशन, फॉर कंजेस्टेड कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो है उसको अगर कंजेस्टेड है तो उसको रिलीव करने के लिए यहाँ पे फेनाइलेफ्रिन दे सकते हैं 5 to 10%। Adrenaline, congener, dipiveprin, epraconidine and bromidine are used in the to treat the glaucoma. ग्लूकोमा में भी जो है एड्रेनलिन कॉन्जनर जो ड्रग है, लाइक डिपिवेप्रिन, एप्राक्लोनिडिन, ब्रोमिडिन जो ड्रग है वो यूज की जाती हैं ग्लूकोमा ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे जो नीचे तीनों प्रिपरेशन दी हुई हैं, दिस इज दी टेबलेट फॉर्म ऑफ दी फेनाइलेफ्रिन HCl। नाक जब बंद हो जाता है तो उसको खोलने के लिए ये टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, ऐसी प्रिपरेशंस। ये जो सेकेंड नंबर, ये आईवी फॉर्म में अवेलेबल है। फाइल में और यहाँ पे अवेलेबल हैं ये फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, और ये हैं ऑप्थेल्मिक यूज के लिए, आंख में यूज के लिए फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन है ये, ठीक है, 10% सॉल्यूशन यहाँ लिखा है ना, 5 to 10% सॉल्यूशन जो है प्यूपिल को डायलेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज दी ओबेसिटी। ओबेसिटी में एड्रेनलिन और इनके जो ड्रग है उनका यूज कैसे है, जो एनोरेक्टिक ड्रग है क्लासिफिकेशन में देखिए, एनोरेक्टिक जो है कैन हेल्प टू रिड्यूस द ओबेसिटी, क्योंकि ये लिपोलाइसिस करती हैं, जो लिपिड का लेयर है उसको ब्रेक डाउन करके लिपोलाइसिस करने का काम करती हैं। लॉन्ग टर्म यूज में प्रोड्यूस द एडवर्स इफेक्ट। सिबुट्रामीन जो है, सिबुट्रामीन जो कैटेगरी एनोरेक्टिक में जो सिबुट्रामीन ड्रग है वो बेसिकली यूज की जाती है। तो एक किसी कंपनी का प्रोडक्ट हमने यहाँ पे शो किए हैं, दिस द ब्रांड ऑफ द लेब फार्मा। लेब फार्मा कंपनी का प्रोडक्ट है सिबुट्रामीन, 20 मिलीग्राम सिबुट्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, सो इस तरह की पैकिंग में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। नेक्स्ट, यूज ऑफ द एड्रेनर्जिक ड्रग्स इन द ब्रोंकियल अस्थमा। हमने देखा जो साल्बिटामोल, टर्ब्यूटेलिन से जो ड्रग है, बीटा 2 रिसेप्टर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकियल मसल्स में होता है उससे बाइंड होके और रिलैक्स करने का काम करती है ब्रोंकियल मसल्स के अंदर। तो जब अस्थमा का पेशेंट होता है, अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है कि जो ब्रोंकाई है, जो विंड पाइप है या श्वास की नली है, वो सिकुड़ने लग जाती है, ऐसे पिचक जाती है, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटेलिन ऐसी ड्रग्स देंगे हम, तो पेशेंट के जो ब्रोंकाई हैं वो डायलेट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनसे बाइंड होके जो टर्ब्यूटेलिन, साल्ब्यूटामोल ये ड्रग जो है अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। ऐसी सारी प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे मोस्ट कॉमन यहाँ पे आपको ये दिख रहा है एस्थलीन इनहेलर। ये इनहेलर नॉर्मली मूवीज वगैरह में हम देखते हैं। तो इस इनहेलर में क्या कौन सी ड्रग होती है, साल्ब्यूटामोल इनहेलेशन, IV 100 माइक्रोग्राम ये डोज है इसका। तो इसके अंदर ये ट्यूब लगा के और पेशेंट को जब भी अस्थमैटिक अटैक आए तो इससे वो यूज कर सकता है और रिलीफ उसको आराम मिलता है। दूसरा, साल्ब्यूटामोल का टेबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, 4 मिलीग्राम का टेबलेट भी मार्केट में अवेलेबल होता है साल्ब्यूटामोल का। और जो यहाँ पे इसी कैटेगरी का जो टर्ब्यूटेलिन है, टर्ब्यूटेलिन सल्फेट, ये कफ सिरप सबसे मोस्ट फेमस कफ सिरप है, ग्रिलिंगटस BM, ठीक है, लेबोरेट, ये है इसकी लेबोरेट की है। सो टर्ब्यूटेलिन सल्फेट इसका कंटेंट है ग्रिलिंगटस BM का। ओके, ये कफ सिरप है, खांसी की दवा है जो मार्केट में अवेलेबल होती है।
तो इस तरह के सारे प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल हैं इन ड्रग्स के. The next and last is the in the obesity. हमने देखा एनारेक्टिक जो है, सॉरी ये दोबारा आ गई स्लाइड. सो दी इन पार्किंसनिज्म एंड एपिलेप्सी, जो एम्फेटामिन ड्रग जो है वो पार्किंसनिज्म और एपिलेप्सी में अपने अच्छे रिजल्ट देते हैं. तो ये कुछ प्रिपरेशन यहाँ अवेलेबल हैं एम्फेटामिन के. 5 मिलीग्राम एम्फेटामिन इंडिया में कम ही अवेलेबल है ऐसे ड्रग्स. देन लास्ट वन इज द यूटेराइन रिलैक्सेंट. जो यूटेराइन रिलैक्सेंट्स है उसके अंदर एटोड्रीन और आइसोक्सोपुरीन जो आपको ड्रग क्लासिफिकेशन में दिखी थी, उनके कुछ प्रिपरेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं. तो ये जो है बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड होती हैं और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं. पोस्टपोन द लेबर पेन को आगे बढ़ाने के लिए यूज की जा सकती हैं. और थ्रेटेन अबॉर्शन में भी जो है आइसोस्पोरिन का यूज है. सो विद दिस we have completed the chapter adrenergic system. In the next class we will discuss about the anti-adrenergic system or the drugs which block the alpha or beta receptor. Okay.